میرے والدین مجھے مار کر بہت دور پھینک آئے۔ وہ مجھے کہتے تھے کہ تم نے ہماری عزت خاک میں ملا دی ہے۔ میں نہیں جانتی تھی کہ میں نے ایسا کون سا کام کیا جو ان کی عزت خاک میں مل گئی تھی۔ میں تو بس ایک معذور لڑکی تھی جسے دنیا بھر کا کوئی ہوش نہیں تھا۔ میرے والدین نے مجھے زہر دے دیا تھا۔ ان کی نظروں میں مر چکی تھی، مگر کسی نیک انسان کی مجھ پر نظر پڑ گئی۔ اس نے میری جان بچائی اور پھر وہ مجھے اپنے گھر لے گیا۔ 3 سال بعد جب میں 17 سال کی ہوئی تو اس نے مجھ سے نکاح کر لیا۔ میں اس کے ساتھ بہت خوش تھی۔ ایک روز میری نوکرانی روتے ہوئے مجھے کہنے لگی، بی بی جی، مجھ سے یہ ظلم دیکھا نہیں جاتا۔ جب میں نے اس سے پوچھا کہ کون سا ظلم، تب وہ بولی، آج رات آپ اپنے بستر کی چادر اٹھا کر خود دیکھ لیجیے گا، آپ کو سب پتہ چل جائے گا کہ صاحب جی آپ پر اتنا مہربان کیوں ہے۔ رات کو شوہر کے سونے کے بعد میں نے جیسے ہی اپنے بستر کی چادر ہٹائی تو میرے سر پر آسمان گر پڑا۔ ایسا لگتا تھا کہ ابھی میری جان نکل جائے گی، کیونکہ وہاں تو میرا نام عقیلہ ہے۔ میرے والد پرائیویٹ ادارے میں جاب کرتے تھے۔ میری والدہ کو بھی جاب کرنے کا بہت شوق تھا، مگر ابا انہیں جاب نہیں کرنے دیتے تھے۔ ابا ان کی خوبصورتی کی وجہ سے انہیں باہر جانے نہیں دیتے تھے۔ میری اماں کی تعلیم میرے ابا سے زیادہ تھی۔ وہ کہتی تھیں کہ میری قابلیت سے جلتے ہو، اس لیے مجھے جاب نہیں کرنے دیتے۔ بس اسی وجہ سے دونوں کی آپس میں نہیں بنتی تھی۔ ہر وقت لڑائی جھگڑے چلتے رہتے تھے۔ اماں کی باتوں میں زیادہ عمل دخل اماں کی دوستوں کا تھا، جو ہر وقت اپنی مہنگی چیزوں کا دکھاوا کرتی رہتی تھی۔ اماں کے اندر بھی خواہش پیدا ہوتی کہ وہ بھی ایسی چیزیں استعمال کریں۔ انہیں اپنی غربت بہت بڑا عیب لگتی تھی، حالانکہ ہمارے گھر کسی چیز کی کمی نہیں تھی۔ بس بابا اتنا کما لیتے تھے کہ جس سے گھر کا نظام بہت اچھے سے چل سکتا تھا۔ میری پیدائش پر دونوں ہی خوش تھے، لیکن جب انہیں پتہ چلا کہ ان کی بیٹی معذور ہے تو وہ ایک دوسرے پر الزام دینے لگے۔ انہیں تندرست بچہ چاہیے تھا۔ امی کو اپنی دوستوں کے سامنے یہ بتانے میں شرمندگی ہوتی تھی کہ ان کی بیٹی معذور ہے۔ ابا تو ویسے بھی مجھے بوجھ سمجھتے تھے۔ میں سارا دن روتی رہتی۔ دادی تھیں جو میرا خیال رکھتی تھیں، میرے پاس بیٹھتی تھیں۔ یوں ہی میں بڑی ہوتی گئی۔ مجھے کہیں جانے کی اجازت نہیں ہوتی تھی۔ میں اماں ابا کی لڑائی جھگڑے دیکھتی آئی تھی۔ اماں کا بے پناہ حسن مجھے وراثت میں ملا تھا۔ اتنی خوبصورتی کا کیا فائدہ جب کوئی پیار ہی نہ کرے، آپ کو بوجھ سمجھا جائے۔ ابا کہتے تھے، پتہ نہیں کس گناہ کی سزا میں ہمیں یہ معذور لڑکی ملی ہے، حالانکہ میں ان کی اکلوتی اولاد تھی۔ میرے ابا اماں اب مزید اولاد نہیں چاہتے تھے، بس مجھے دیکھ کر کہتے کہ ہائے اتنی خوبصورت بچی ہے، کاش یہ اپنی ٹانگوں پر چل سکتی۔ اب کون اس سے شادی کرے گا؟ میرا دل چاہتا تھا کہ میرے والدین مجھے پیار کریں، مگر وہ تو میری طرف دیکھ کر بھی راضی نہ تھے۔ وہ تو آپس میں طلاق چاہتے تھے، لیکن سب سے بڑی وجہ میں تھی۔ وہ مجھے کسی یتیم خانے میں جمع کروانا چاہتے تھے، لیکن دادی نے ایسا نہیں ہونے دیا تھا۔ پھر اچانک دادی کی طبیعت خراب رہنے لگی تو کوئی مجھے پوچھتا تک نہیں تھا۔ ان کا علاج بھی جیسے تیسے چل رہا تھا، اور پھر 1 ماہ بعد دادی ہمیشہ کے لیے اللہ تعالیٰ کے پاس چلی گئی تھی۔ میں بہت روئی تھی کہ اللہ تعالیٰ بھی مجھے اپنے پاس بلا لے۔ دادی کو فوت ہوئے چند دن گزرے تھے کہ اماں ابا کی لڑائیاں مزید بڑھ گئی تھیں۔ اماں اپنا سارا غصہ مجھے مار کر نکالتی تھیں۔ انہوں نے کبھی مجھے ڈاکٹر کو نہیں دکھایا تھا، کیا پتہ میں ٹھیک ہو جاتی۔ اب تو اماں ابا کی غیر موجودگی میں کسی آدمی سے بھی ملنے لگی تھیں۔ اماں نے مجھے سختی سے منع کیا کہ یہ بات میں کسی کو بھی نہیں بتاؤں گی۔ پھر ایک روز میرے اماں ابا میں کسی بات پر بہت بحث ہوئی۔ اس کے بعد اماں میرے پاس آئیں اور مجھے اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلانے لگیں۔ میں حیران ہوئی کہ اماں کو کیا ہوا ہے جو وہ مجھے اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلا رہی ہیں، مگر میں نہیں جانتی تھی کہ اس کھانے میں زہر ملا ہوا ہے۔ کھانا کھانے کے بعد جب میں بے ہوش ہو گئی اور میرے والدین کو لگا کہ میں مر چکی ہوں، تب وہ مجھے اٹھا کر ایک بہت دور جگہ پر لے آئے تھے۔ اس وقت میری عمر 14 سال ہوگی۔ میں نے سنا ہوا تھا کہ ماں باپ کو اپنی اولاد سے بہت پیار ہوتا ہے۔ وہ خود کو مشکلوں میں ڈالتے ہیں، لیکن اپنی اولاد کو گرم ہوا بھی نہیں لگنے دیتے۔ لیکن مجھے زہر دیتے وقت میرے والدین کے ہاتھ پاؤں تک نہیں کانپے تھے۔ ان کے اندر سے شاید انسانیت ختم ہو گئی تھی۔ وہ اپنا سفر الگ کرنا چاہتے تھے تو مجھے بتا دیتے۔ میں کون سا رکاوٹ بنی تھی؟
मुझे मारने की क्या जरूरत थी, वो तो शायद समझ गए थे कि उन्होंने मुझे मार दिया था। कहते हैं ना कि मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है। मैं सच में मर गई होती, मगर ऐन मौके पर किसी मेहरबान शख्स ने मेरी जान बचा ली। मैं अस्पताल के बेड पर थी। मैं बहुत हैरान हुई थी। आज के दौर में कौन ऐसा करता है, जबकि मेरे तो अम्मा अब्बा ने भी मुझे गंद में फेंक दिया था। मेरे लिए वो साहिबान था। उसने मुझसे पूछा कि तुम कौन हो और किसने तुम्हें जहर दिया है। मैंने कहा कि मेरे अम्मा अब्बा मेरी माजूरी की वजह से मुझसे नफरत करते थे, मुझसे छुटकारा चाहते थे, तभी उन्होंने मुझे जहर दे दिया। वो आदमी बहुत खूबसूरत था। वो मुझे अपने घर ले आया। उसका घर बहुत खूबसूरत था। वो मुझे अमीर घर का लगता था। मैंने उससे पूछा कि आपके घर में कोई नहीं रहता, तो उसने कहा कि मेरा भी इस दुनिया में कोई नहीं है। उसने कहा कि आप यहाँ रह सकती हैं। मुझे पहले तो बड़ी झिझक हुई कि किसी गैर मर्द के घर में कैसे रुक सकती थी, लेकिन फिर मेरे पास कोई दूसरा रास्ता भी तो नहीं था। मैंने कहा कि आप मुझे कोई काम दे दें, तो वो हंसकर कहने लगा कि तुम काम करने के लिए इस दुनिया में नहीं आई। काम करने के लिए मेरे घर में बहुत से मुलाजिम हैं। फिर वो मेरा भी बहुत ख्याल रखने लगा। वक्त यूं ही गुजरता गया। जब मैं 17 साल की हुई तो मैं दिल ही दिल में उसे पसंद करने लगी, लेकिन कभी कहा नहीं था। फिर एक रोज अचानक उसने मुझसे खुद निकाह का बोल दिया। मैं बहुत हैरान थी। उस जैसा इंसान भला क्यों मुझसे शादी करेगा, मगर ये सब हकीकत थी। फिर उसने मुझे बहुत सी शॉपिंग करवाई, मुझे हर चीज देकर दी। एक दिन उसने मुझसे शादी कर ली। मैं अब उसके साथ बहुत खुश थी। अब मैं उसके घर की मालिक थी। मुझे इस दुनिया में सहारा मिल गया था। मेरे अल्लाह ने मुझ माजूर को भी इतना अच्छा हम सफर दिया था। उसका नाम रिजवान था। रोजाना काम से वापसी पर वो मेरे लिए ताज़ा गुलाब का फूल लाजमी लाते थे। मुझे घर का कोई काम नहीं करने देते थे। मैं रोज उनके लिए सजती संवरती थी। उसने बताया उसका बहुत बड़ा बिजनेस है और वो बहुत अमीर है। मैं बहुत मुतासिर हुई। मुझे अपने साथ ले जाते हुए उन्हें कभी भी शर्म महसूस नहीं हुई थी। मैं हर पार्टी में उनके साथ जाती। उनके फ्रेंड सब हैरान थे कि इतने खूबसूरत इंसान ने एक मासूर लड़की से शादी कर ली। मैं खूबसूरत थी, मगर कहते हैं ना कि खुशियों की मुद्दत कम होती है, किसी न किसी की नजर लग ही जाती है। मैं अल्लाह ताला से दुआ करती थी कि मेरी खुशियों को किसी की नजर ना लगे। मैं और रिजवान एक दूसरे के लिए काफी थे। एक रोज मुलाजमा खाना देने आई तो बोली, बीबी जी, मुझसे ये जुल्म देखा नहीं जाता। मैं बोली, कौन सा जुल्म? तब वो बोली, बीबी जी, आप रात को साहब के सोने के बाद अपने बिस्तर के नीचे जरूर देखना। मैंने पूछा तो बोली, बीबी जी, मैं कुछ नहीं बता सकती। साहब से मेरी शामत आ जाएगी, लेकिन आप देखिएगा प्लीज, साहब को कुछ मत बताइएगा, वरना वो मुझे काम से निकाल देंगे। मैं हैरान रह गई कि मेरे शोहर की काबिल एतबार मुलाजमा थी। मुझे कहीं जाना होता तो वो ही मेरी व्हील चेयर पकड़ती थी। मुझे बड़ा तजस्सुस हुआ। उस रात मैं अपने शोहर के सोने का इंतजार करने लगी कि आखिर ऐसा क्या है बेड के नीचे। मेरे वहमो गुमान में भी नहीं था कि बेड के नीचे क्या होगा। शोहर के सोने के बाद जो ही बेड के नीचे देखा तो मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई, क्योंकि वहाँ हाथ से बनी 4-4 गुड़िया पड़ी थीं। उन सबकी टांगे टूटी हुई थीं और उन पर सुइयां लगी हुई थीं। वो सब देखने में भी मेरे जैसी लगती थीं। मैं बहुत डर गई थी। मेरा जिस्म कांप रहा था। मेरी सोचें उलझी हुई थीं। मैंने अपने शोहर से पूछना चाहा, फिर उस नौकरानी का डरा सहमा रूप नजर आया। उसने तो मुझसे वादा लिया था कि मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी। वो कहती थी कि बीबी, मैं आपकी खैर ख्वाह हूँ, लेकिन आपने साहब को बताया तो वो आपके साथ भी बुरा करेंगे, मुझे भी नौकरी से निकाल देंगे। मैं अपने छोटे छोटे बच्चों को कहाँ से खिलाऊंगी। मैंने अगली सुबह अपनी उसी नौकरानी से पूछा कि बेड के नीचे 4 पुतले थे जो सुबह के वक्त वहाँ से गायब हो गए थे। तुम बताओ ऐसा क्या है, क्यों मुझसे छुपा रही हो? वो बोली, बीबी जी, आपको नहीं लगता कोई आप पर इतना मेहरबान है? उसकी कोई न कोई वजह तो होगी। आपसे पहले यहाँ और बहुत सी लड़कियां आई थीं, वो सब साहिब के हुस्न से मुतासिर थीं। साहब ने उनसे भी इसी तरह शादी की थी। फिर वो अपनी बात काट कर बोली, बीबी जी, आप बहुत मासूम हैं, आप साहब जी से बचकर रहें। मैं आपकी मदद करना चाहती हूँ। मुझे अपने कानों पर यकीन न आया। मैंने कहा, पहले मुझे ये बताओ, इस पुतले से क्या होगा? वो बोली, बीबी जी, पहली मैडम साहिबा के बेड के नीचे भी ऐसे ही साहब ने पुतले रखे थे, मैंने खुद देखा था। फिर कुछ दिन बाद वो बीबी जी फोत हो गई थी। साहब ने कहा कि किसी को नहीं बताना।
हम सबको भी बताने से मना किया है। नौकरानी की बात सुनकर मुझे अजीब परेशानी ने घेर लिया था। मैंने उससे मशवरा मांगा, तुम ही बताओ मुझे क्या करना चाहिए। वो बोली, बीबी आपको यहाँ से अपनी जान बचाकर भाग जाना चाहिए। वो बोली, बीबी जी पास ही एक एनजीओ है, वहाँ पर यतीम और बेसहारा लड़कियों को रखा जाता है, आप वहाँ चली जाएं, यहाँ पर तो आप बेमौत मारी जाएंगी। मैं वो पुतले देखकर और मुलाजमा की बात सुनकर बहुत डर गई थी। मेरा दिल मानने से इनकारी था। मेरा शौहर तो इतना ख्याल रखता था, मेरे इलाज के लिए फिक्रमंद था। उसने कहा था कि मैंने डॉक्टर से बात कर ली है, तुम्हारा इलाज भी हो जाएगा। कोई मुझे इतना चाहता हो और फिर वो ये कैसे सब कर सकता है। मुझे समझ ना आया कि मैं किसका यकीन करूं और किसका ना करूं। नौकरानी एक मुलाजमा को लेकर आई, उसने भी वही कहानी सुनाई। अब तो मैं सच में डर गई थी और उसी दिन घर से भाग गई। मैं एनजीओ जा रही थी कि मेरी माँ ने मुझे देख लिया और गाड़ी रोककर मेरे पास आ गई। वो मुझे जिंदा देखकर रोने लगी। मैं माँ को देखकर डर गई थी कि कहीं घर जाकर फिर से वो मुझे जहर ना दे दें, मगर मैं भाग भी नहीं सकती थी। मेरी आंखों में खौफ देखकर वो बहुत शर्मिंदा हुई। वो मुझे कहने लगी, बेटी मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ जो कुछ भी किया बहुत गलत किया था। मैं समझी तुम मर गई हो, मगर तुम तो जिंदा हो। वो मेरे करीब आने लगी, मुझे उन पर गुस्सा आया। मैंने कहा कि खबरदार, आपने मेरे करीब आने की कोशिश भी की तो मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगी। वो मेरे पाँव में पड़ गई, बोली कि मुझे माफ कर दो। उस दिन तुम्हें मारना मेरा फैसला नहीं था, बल्कि ये फैसला तुम्हारे बाप का था। मैं बहुत मजबूर थी, मगर अब तुम मेरे साथ रहोगी। तुम्हारा बाप मुझसे अलग हो गया है। मैंने कहा कि मैं कैसे यकीन कर लूं कि आप घर जाकर मुझे मारेंगी नहीं, मेरे साथ बुरा बर्ताव नहीं करेंगी। वो रोने लगी और कहने लगी, मेरी बच्ची मेरा यकीन करो, मेरी तड़पती हुई ममता को सुकून आ जाएगा। मुझे एक मौका दो। मेरा दिल भी भर आया। मैंने उनके गले लगकर खूब आंसू बहाए। वो मुझे अपने घर ले आई। मैंने पूछा, अब्बा और आपकी तलाक क्यों हुई? अम्मा बोली, तुम्हारे अब्बा मेरे साथ रहना नहीं चाहते थे, उन्होंने धमकी दी थी अगर मैंने तुम्हें मारने में उनका साथ ना दिया तो वो हम दोनों को ही मार देंगे, इसलिए मैंने उस डर से उनका साथ दिया था। मुझे इस कदर कमजोर नहीं होना चाहिए था। फिर एक दिन तुम्हारा बाप दूसरी शादी करके घर आ गया। तुम्हारे मामू ने कोई तामुन नहीं किया, सबने यही कहा कि मर्द दूसरी शादी कर सकता है, तुम उसके साथ रह लो। अम्मा कहती थी कि मैं उस इंसान के साथ नहीं रहना चाहती थी। मैं सारी सारी रात रोती रहती थी। मैं एक ऐसी माँ हूँ जिसने अपनी बेटी को ही जहर दे दिया था। जमीर की अदालत में एक पल के लिए सुकून नहीं था। तुम्हारे अब्बा के साथ मैं रहना नहीं चाहती थी। मैं पहले दौलत की लालच में थी। मुझे तुम्हारे अब्बा का एक दोस्त पसंद था, लेकिन फिर मैं समझ गई कि कोई मर्द भरोसे के काबिल नहीं होता। मेरी तलाक के बाद वो भी मुझसे शादी करने के लिए राजी नहीं था। मैंने नौकरी की तलाश शुरू कर दी, फिर मुझे नौकरी मिल भी गई। जब मैंने नौकरी करना शुरू कर दी तब मुझे एहसास हो गया कि मैंने क्या किया है। सारी उम्र तुम्हारी कदर नहीं की, तुम मेरी औलाद थी। मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया। कितने जोड़े औलाद की नेमत को तरसते हैं और अल्लाह से दुआएं करते हैं, मन्नतें मांगते हैं, मुझे माफ कर दो। मैं उनको मजीद शर्मिंदा नहीं देख सकती थी, इसलिए माफ कर दिया। वो खुश हो गईं। अम्मा बोली, अब मैं तुम्हें कहीं जाने नहीं दूंगी। इतने अरसे तुम कहाँ रही थी? मैंने कहा, जब आप लोग मुझे मारकर कचड़े में फेंक गए थे तब मुझे एक शख्स अपने घर ले गया था, मेरा इलाज करवाया और फिर उसने मुझसे शादी कर ली। लेकिन मुझे पता चला कि वो अच्छा इंसान नहीं है। मुझे वहाँ काम करने वालियों ने बताया कि उसने पहले भी बहुत सी शादियाँ की हुई हैं। वो उनकी हम शक्ल गुड़िया बेड के नीचे रखता है और फिर चंद दिन बाद ही उनकी बीवी मर जाती थी। तभी मैं वहाँ से भाग आई। अम्मा रोते हुए बोली, ये सब मेरी वजह से हुआ है, मैं अच्छी माँ नहीं हूँ, तभी तुम्हें इतनी मुश्किलें देखनी पड़ी। तुम अपनी माँ को माफ कर दो। मैंने कहा, अम्मा इसमें आपका कोई कसूर नहीं है। अम्मा बोली, इसमें मेरा ही कसूर है, तुम्हें इस कदर नफरत से पाला। मैं दिन रात तुम्हें भूखा रखती थी, तुम्हें मारती थी, तुम डर जाया करती थी, लेकिन मैं तरस नहीं खाती थी। मगर अब तुम्हें कोई शिकायत का मौका नहीं दूंगी, एक अच्छी माँ बनकर दिखाऊंगी। मैं उनके घर रहने लगी थी। वो मुझसे बातें करने की बहुत कोशिश करती थी। अम्मा अब भी वैसे ही खूबसूरत थी।
कहीं से भी एक शादीशुदा बेटी की मां नहीं लगती थी। कोई भी धोखा खा जाता। उनकी उम्र और चाल चलन से वो मेरी बहन लगती थी। अब भी उन पर कई मर्द मरते थे। अम्मा ने बताया कि वो जहाँ जॉब करती हैं, ये घर उन्हें उसी कंपनी की तरफ से मिला है। ऑफिस की तरफ से गाड़ी भी मिली थी। वो किसी बड़े ओहदे पर जॉब करती हैं। मुझे कहा कि मैं जल्द तुम्हें तुम्हारे शोहर से तलाक दिलवा दूंगी। तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है। अब तुम अकेली नहीं हो। तुम्हारी माँ तुम्हारे साथ है। मैं खुश हो गई कि मैं अकेली नहीं हूँ। मुझे कहीं न कहीं शोहर को छोड़ने का दुख जरूर था। मैं उस शख्स की शख्सियत से अब तक नावाकिफ थी। अम्मा वापिस आकर मुझसे खूब सारी बातें करती। मुझे बताती कि मैंने अपने सब दोस्तों को छोड़ दिया है। सब मुझे नीचा दिखाती थीं। उन्होंने मेरे अंदर जहर भर दिया था। मैंने कहा कि इंसान गलतियों से ही सीखता है, और वो चुप हो गई। मुझे यहाँ रहते महीना हो गया था। एक दिन रात को प्यास की वजह से उठी, किचन में आने लगी, लेकिन मुझे अम्मा के कमरे से आवाजें आ रही थीं। मुझे तजस्सुस हुआ कि सुनूं तो वो क्या बातें कर रही हैं। रात के इस पहर अम्मा के कमरे में कौन हो सकता है? अम्मा ने तो कहा था कि उन्होंने सबसे ताल्लुक तोड़ दिया है। फिर ठहर कर सुनने लगी। किसी मर्द की आवाज आ रही थी। अम्मा को वो शख्स कह रहा था, तुम जल्दी अपनी बेटी को तलाक दिलवाओ, वरना तुम्हें मैं नौकरी से निकाल दूंगा। वो अम्मा का बॉस था, लेकिन रात के इस पहर वो भी अम्मा के कमरे में। मुझे ये सब ठीक ना लगा। फिर वो कहने लगा, तुम जो मुझसे शादी करने के ख्वाब देख रही हो, तुम्हारे ख्वाब तभी पूरे होंगे जब तुम मेरा काम करोगी। अगर मैंने तुमसे अपना घर और गाड़ी खींच ली तो तुम सड़क पर आ जाओगी। तुम अभी तक अपनी बेटी को तलाक नहीं दिलवा सकी। मैंने इतना कुछ किया, तुम्हारी बेटी की नौकरानी को पैसे दिए, उसको घर से निकाला, तुम्हारी बेटी के दिल में बदगुमानी पैदा की, झूठे पुतले बनाकर रखे। ये अपाहिज लड़की मेरे बेटे की जिंदगी में नहीं होनी चाहिए। मैं हैरान थी। ये मेरी ही बात हो रही थी। यकीनन ये आदमी मेरे शोहर का बाप था। मेरी अम्मी बोली, जैसे तुम बोलोगे वैसा ही होगा। अब तुम्हें शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। मैंने बेटी के दिल में जगह बना ली है। वो बहुत भोली भाली है। मैं उससे साइन करवा लूंगी। अब मुझे सारी बात समझ आ गई थी। मुझे अपनी कम अकली पर गुस्सा आया कि मैंने इतनी मोहब्बत करने वाले शोहर पर एतबार नहीं किया। मैं कितने आसानी से उनके जाल में आ गई थी। जो माँ बेटी को जहर दे सकती है, वो अचानक इतनी अच्छी कैसे हो गई? ये सोची समझी चाल थी। वो नौकरानियां भी मिली हुई थीं। मैं उनकी बातों में आ गई। उन्होंने ही वो 4 गुड़िया मेरी हम शक्ल रखी होंगी, और लड़कियों की कहानी भी मन घड़त थी। मुझे एकदम घुटन का एहसास हो गया। मैं यहाँ से निकलना चाहती थी। अगले दिन अम्मा ऑफिस गईं तो उनकी मुलाजमा मुझ पर नजर रखने के लिए आ गई। मैंने उससे कहा, मेरी मदद करो, मैं तुम्हें मुंह मांगी रकम दूंगी। मुझे मेरे शोहर के घर ले चलो। मेरी माँ बहुत जालिम है। मेरी माँ बिल्कुल भी नहीं बदली थी। उसने बस मेरे सामने अच्छा बनने का निकाब चढ़ाया हुआ था। मैंने कहा कि वो मुझे तलाक दिलवाना चाहती हैं, मेरा घर तबाह करना चाहती हैं। काम होने के बाद उस अमीर बंदे से शादी करके वो मुझे छोड़कर चली जाएगी। तुम मेरी मदद करो। उसे भी शायद मुझ पर रहम आ गया। उसे पैसों की जरूरत थी, तभी वो मान गई। मैं गाड़ी करवाकर सीधा शोहर के पास आ गई। वो खूबसूरत शख्स मेरी याद में आधा हो गया था। मुझे देखकर हैरान हुआ और बोला कि तुम किधर चली गई थी बगैर बताए? मैंने तुम्हें किधर किधर नहीं ढूंढा। ऐसी कौन सी गलती हो गई थी जो तुम मुझे छोड़कर चली गई? मैंने कहा, मुझे माफ कर दो। तुम्हारी खास नौकरानी ने मुझे कहा था, तुम लड़कियों को इस्तेमाल करते हो और फिर उनको मार देते हो। उसने मेरे हमशक्ल पुतले भी मुझे दिखाए थे। जब मैंने उस मुलाजमा को ढूंढा तो वो पूरे घर में नहीं थी। मेरे शोहर तो उन सब से लाइल्म थे। जब मैं घर छोड़कर गई तो उस नौकरानी ने ही मेरे शोहर को बताया कि मैं अपने अम्मा अब्बा के पास चली गई हूँ। उसने मेरे शोहर से कहा था कि मैं वापस नहीं आऊंगी। मैंने कहा कि मैं डर गई थी, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारा एतबार नहीं किया। गलत इंसान पर एतबार करके हमेशा इंसान नुकसान ही उठाता है। जिस लड़की के माँ बाप ने उसे इस्तेमाल करके अपने मतलब के लिए फेंक दिया हो, वो लड़की ऐसी ही बन जाती है। मैंने कहा, मेरी माँ और तुम्हारे बाप ने हमें अलग करने का इरादा किया था। वो दोनों मिले हुए हैं। तुम्हारा बाप मुझ जैसी माजूर लड़की को अपनी बहू तस्लीम नहीं करना चाहता। उन्हें तुम्हारे हम कदम चलने वाली लड़की चाहिए जिसमें कोई नुक्स ना हो। वो मेरी माँ से इसी शर्त पर शादी करना चाहता है कि पहले वो मेरी तलाक करवाएगी। मेरा शोहर सारी हकीकत जानकर हैरान रह गया। वो बोला, मेरा बाप अच्छा आदमी नहीं है, इसलिए उनसे अलग रहता हूँ मैं।
उन्हें अय्याशी की आदत है। हर खूबसूरत लड़की को वो शादी के ख्वाब दिखाते हैं, अपने पैसों से उस लड़की को अय्याशी करवाते हैं और जब अपना मकसद पूरा हो जाए तो छोड़ देते हैं। उसका मतलब वो अम्मा को भी सिर्फ अपने मकसद के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, उनसे शादी नहीं करेंगे। मेरे शौहर ने कहा, मैं तुम्हें कभी भी नहीं छोड़ूंगा। मैंने उस नौकरानी को काम से निकाल दिया था। मेरे शौहर ने फिर से मेरा हाथ थाम लिया था। वो मुझसे बहुत मोहब्बत करते थे। ऐसे लोग जो दौलत की लालच में आकर आपका घर तबाह कर दें, उन पर कभी एतबार नहीं करना चाहिए। मेरी माँ को भी सब असलियत का पता चल गया था। वो भी मेरे शौहर के घर आई। उन्हें फिक्र थी कि अगर मैंने सुलह कर ली तो कहीं उनके हाथ में आई दौलत वापस ना चली जाए। हकीकत में वो किसी को प्यार ही नहीं करती थी। वो मेरे पास आकर मुझे कहने लगी, तुम मेरी बेटी हो, चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें इस आदमी से तलाक दिलवाऊंगी। मैंने कहा, आपका असल चेहरा मैं देख चुकी हूँ, अब मैं अपने शौहर के साथ रहूंगी। मैं बेवकूफ थी जो आप पर एतबार किया। मुझे समझ जाना चाहिए था कि आप एतबार के लायक नहीं हैं। वो बोली, क्या बोल रही हो बेटी, मैं तुम्हारा इलाज करवाना चाहती हूँ, तुमने मुझे माफ कर दिया है। मैंने कहा कि मैंने आपकी उस रात सारी बातें सुन ली थी। अगर अब आपने मेरे साथ कोई जबरदस्ती की तो मैं आपको पुलिस के हवाले करूंगी। पुलिस का नाम सुनकर वो घबरा गई। मैंने कहा कि आप इस काबिल नहीं हैं कि आपको माफ किया जाए। मैंने उन्हें जान से मार देने के जुर्म में अंदर करवा दिया था कि उन्होंने मुझे जहर देकर मारने की कोशिश की है। पुलिस उन्हें गिरफ्तार करके ले गई थी। मैं कभी भी ऐसा ना करती, लेकिन मुझे पता था कि उन्होंने मेरी जिंदगी में सुकून कभी नहीं रहने देना था। लेकिन अल्लाह ताला का शुक्र है कि सब मामला ठीक हो गया था। मेरे शौहर ने मुझे बताया कि मैंने तुम्हें बहुत जगह ढूंढा मगर तुम मुझे कहीं ना मिली। तुम काश मुझ पर यकीन कर लेती। तुम्हारी माँ और मेरा बाप दोनों ही गलीज इंसान हैं, इसलिए मैं इन रिश्तों से निकल आया हूँ। इस दुनिया में वाहिद तुम हो जो मेरी हो। मुझे शर्मिंदगी हुई। मेरा शौहर मुझसे इतना प्यार करता था, फिर भी मैंने उसका एतबार ना किया। मेरे माफी मांगने पर उन्होंने मुझे माफ कर दिया। अब हम हंसी खुशी रह रहे हैं। मैं अपने इलाज के लिए अपने शौहर के साथ बाहर के मुल्क आ गई थी। डॉक्टर ने ऑपरेशन का बताया था कि उसके बाद ये चल फिर सकती है। मेरे शौहर मेरा इतना ख्याल रखते थे कि मैं अल्लाह ताला का जितना शुक्रिया अदा करती कम था। ऑपरेशन के बाद मैं बिल्कुल ठीक हो गई थी, अपने पाँव पर चलने लगी थी। मैंने अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र अदा किया था कि उसने मुझे इतना प्यार करने वाला शौहर अता किया था।